Everybody. Now we will start Elegy, the first poem of this session. In last video I have told you what an elegy is. Now I will dictate you, all of you note down the definition of elegy. An elegy is essentially a poem of mourning or lamentation on the death of some particular person. But in the wider sense, it may also be a poem of mourning on the morality and vanity of human life in general. I hope all of you have noted down it. Now the title of the elegy is Elegy Written in a Country Churchyard. Country churchyard. Here the churchyard mentioned is Stoke Poges churchyard. Now we will discuss about the poem, about the elegy. As I stated you, Gray's Elegy is one of the most popular poem in the English language, and it is mainly of the poem that the popularity and reputation of Gray as a poet accurately rests. Here we means to say that ये अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्तम कविताओं में से एक है और ग्रे की जो प्रतिष्ठा है वो इसी कविता के कारण एक अच्छे पोएट के रूप में प्रतिष्ठित हुई है. ग्रे began to wrote this poem in 1745 at the death of his uncle, but could not continue it. He took it in hand again in 1749 when the death of his aunt brought to his recollection and unfinished piece. After finishing it, after writing it, he circulated it among his friends. ग्रे ने इस कविता को 1947 में लिखना आरंभ किया जबकि उसके चाचा की मृत्यु हुई, लेकिन वो इसको निरंतर जारी नहीं रख सका. बाद में फिर उसने उसकी चाची की मृत्यु के समय फिर उसे अपनी पुरानी स्मृति आई, उसने 1749 में इसको फिर शुरू किया और इसको समाप्त करने के बाद ही इसका सर्कुलेटेड इट अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों को इसे भेजा, उनके बीच प्रसारित किया. इट वॉज पब्लिश्ड ओनली व्हेन ग्रे केम टू नो दैट it was going to be printed under someone else's name. Referring to this fact, Edmund Goose remarks that it is curious to reflect upon the modest and careless mode in which that poem was first circulated, which was destined to enjoy and to retain a higher reputation in literature than any other English poems. Perhaps
I would like to say, perhaps than any other poems of the world written between Milton and Wordsworth. Now, we have come to know about the introduction of the poem. Now we will start to study the poem. The Curfew Toils. Curfew Toils means evening bell. In medieval time in England, the houses are made of wooden. So it is tradition to extinguish all the hearth at the evening time, and to alert the people, a bell is rung at the evening time. This is known as curfew toils. मध्य युग में इंग्लैंड में मकान इत्यादि जो थे, घर वगैरह लकड़ी के बने हुए होते थे, तो ये डर होता था कहीं आग न लग जाए, कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, इसलिए शाम के समय सबको चेतावनी देने के लिए कि सब अपने चूल्हे बुझा दें, एक घंटी बजाई जाती थी, उसको हम कर्फ्यू टॉयल्स कहते थे। Here the poet describes the evening scene of rural atmosphere. The evening bell rings, the end of the closing day. The lowing herd, the curfew toils the knell of the parting day. We have two things, the evening bell rings and the closing day, end of the closing day. The lowing herd wind slowly. In the next line, the poet explains the cattle are moving slowly in a zigzag way near the meadows. Near the meadows. Lowing means rambhana, making noise. Here herd means group of cattle. Wind slowly, धीरे धीरे जब वो चल रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी उनके पैरों से धूल उड़ रही है। ओवर द प्ली मीन्स नियर द मेडोज, चारागृह। ली मीन्स मेडोज, मेडोज मीन्स चारागृह। चारागृह में थोड़ी थोड़ी धूल उड़ रही है और पशु जो हैं वो जा रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड plods his weary way. Now the poet wants to say that the shepherd boy और ग्वाला और पशु चराने वाला जो है वो भी उनके साथ जा रहा है और दिन की समाप्ति हो रही है। दोनों ही दिन में मेहनत करके आ रहे हैं, शाम का समय हो गया है। हार्डिंग लेबर, उन्होंने बहुत मेहनत की है, थके हारे वो धीरे धीरे चल रहे हैं। अब जब वो थके हारे चल रहे हैं तो हमारे सामने एक प्लॉट्स का मतलब है यहाँ पर धीरे धीरे कदम रखना, कदम आगे बढ़ाना। हिज वियरी वे, यहाँ पर वी हैव ए फिगर ऑफ स्पीच, वियरी वे। वियरी मीन्स होता है टायर्ड, मीन्स थका हुआ, वे मीन्स रास्ता, थका हुआ रास्ता। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं रास्ता तो थकता नहीं है। हम इंसान, हम मानव, हम जानवर जो भी वर्क करेगा, जो भी सजीव चीज़ें हैं मेहनत करेंगी तो थकेंगी।
तो यहाँ पर रास्ता नहीं थका है, एक्चुअल में जो शेफर्ड है, जो प्लोमैन है, वो थक चुका है और वो थका हारा अपने घर की ओर रवाना हो रहा है, जा रहा है, लौट रहा है। तो यहाँ पर ए फिगर ऑफ स्पीच नेम्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। Now a question arises, what is transferred epithet? Transferred means change और परिवर्तन, और epithet means adjective। अर्थात जब विशेषण का प्रयोग जिस स्थान पर जिस नाउन के पहले होना चाहिए वहाँ ना होकर दूसरी इनएनिमेट नाउन के साथ कर दिया जाए तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो यहाँ ट्रांसफर एपिथेट का हमारे पास एग्जाम्पल है वियरी वे, थके हुए रास्ते पर, अर्थात थका हुआ किसान भी उन मवेशियों के साथ अपने घर को लौट रहा है। ऑल हैव वर्कड हार्ड एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। नाउ द पोएट सेज दैट as they leaves the fields, the darkness of the night. Here all the Vatavaran grew dark and the poet is also standing in this darkness. Darkness of the night falls the poet alone in the darkness of the night। अर्थात he means to say कि कभी भी वहाँ अंधेरे में खड़ा है और सारा वातावरण जो है वहाँ का अंधकार में हो चुका है। Now fades the glimmering landscape on the side. As the night comes, the landscape become invisible. जैसे जैसे अंधकार हुआ वैसे वैसे वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य था, वहाँ का जो सौंदर्य था, वो सब अदृश्य हो गया और दिखाई नहीं दिया। देयर इन कामनेस, वहाँ संपूर्ण शांति छा गई, पूर्ण शांति छा गई। एंड ऑल द एयर ए सोलम स्टिलनेस होल्ड्स, संपूर्ण वातावरण में वहाँ शांति छा गई। देयर इज कामनेस एंड क्वाइटनेस ऑल ओवर द atmosphere, all over the landscape, except, pay attention to me, except सिवाय where the beetle moves in a circle, सिवाय वहाँ जहाँ झींगुर जो है वो समूह में गुनगुना रहे हैं। and produce a hammering sound, और गुनगुनाहट की आवाज़ वो उत्पन्न कर रहे हैं, वो आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही है। बाकी सारे वातावरण में एक शांति छाई हुई है। देयर इज कामनेस इन एटमोस्फियर एक्सेप्ट द हम्बरिंग ऑफ बीटल्स, और एक्सेप्ट दिस वेयर द टिंकलिंग साउंड्स ऑफ द बेल्स, वहाँ पर खनखनाहट की आवाज़ भी आ रही है घंटियों की। एंड द घंटियों की आवाज़ कौन सी है? जो पशु दूर बाड़े में सोए हुए हैं, स्लीपी कैटल जो हैं, वो जब उनकी नींद खुलती है तो गर्दन हिलाते हैं और उनके गले में जो घंटी बजी हुई है, लगी हुई है, वो खनखनाहट की आवाज़ कर रही है। इस प्रकार से वहाँ पर ये